إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والمحبة والعرفان والحجة والبرهان والكتاب والقرآن سیدنا نبینا شفیعنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من اعلان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتابہ المجید وفرقانہ الحمید قالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عشر محرم کی آج چوتھی تاریخ ہو گئی۔ ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع کلام ہے مقصد مجلس کیا ہے اور عظمت مجلس کیا ہے، مجلس کا مقصد کیا ہے اور مجلس کی عظمت کیا ہے، یہ عزاداری کیوں کی جا رہی ہے، اس عزاداری کا فیض کیا ہے، اس عزاداری کے فائدے کیا ہیں، بس اسی سلسلے سے آپ کے اذہان عالیہ تک پیغامات پہنچانا ہے۔ ہم جو بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی سے یہ عزاداری امام حسین نصیب ہوئی، یہ ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی سے فرش عزا مل گئی، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری امام حسین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ یہ عزاداری بڑی آسانی سے ہم تک نہیں آئی ہے، بلکہ ہمارے بوڑھوں نے بزرگوں نے اپنا خون دیا ہے اس عزاداری امام حسین کے لیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب حسین کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، علی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، ایسے میں ہمارے اور آپ کے اجداد نے اپنا خون دیا لیکن عزاداری کو سیراب کیا اور عزاداری ہم تک پہنچائی، اور عزاداری کے بہت سے فائدے ہیں، میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں۔ عزاداری کا تعلق جہاں عقل سے ہے وہیں عزاداری امام حسین کا تعلق عشق سے بھی ہے، عزاداری کا تعلق عشق سے بھی ہے اور عزاداری امام حسین کا تعلق عقل سے بھی ہے۔ یہ عزاداری امام حسین جو ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں محرم کا، تو اور عزاداری امام حسین برپا کرتے ہیں، اور ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ عزاداری کوئی رسم ہے، یہ عزاداری کوئی رواج ہے، تو خدا کی قسم عزاداری امام حسین کوئی رسم نہیں ہے، عزاداری امام حسین ایک تحریک کا نام ہے۔ عزاداری امام حسین کوئی رواج نہیں ہے، عزاداری امام حسین ایک انقلاب کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آلہ
बारे दीगर बुलंद तरीन सलवात अज़मत अहले बैत अरमान अगर सही हो जाए तो कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़ लेते। अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला कोई रस्म नहीं है, अज़ादारी इमाम हुसैन करबला एक तहरीक है। और अज़ादारी इमाम हुसैन लिबास की तब्दीली का नाम नहीं है। अब मेरी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएं, मैक की तरफ ना जाएं, शायद मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी आप तक। अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला लिबास की तब्दीली का नाम नहीं है, अज़ादारी इमाम हुसैन किरदार की तब्दीली का नाम है। अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला चेहरों की खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि रूह की खूबसूरती का नाम है। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद एक और सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद। आप लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे तो आवाज़ पहुंच जाएगी, आवाज़ वैसी मुश्किल हो रही पहुंचना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद अज़ादारी को समझिए, और अज़ादारी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जो साल भर इंतज़ार करते हैं माह मुहर्रम का, हम जो साल भर इंतज़ार करते हैं माह मुहर्रम का, तो रस्म समझ के इंतज़ार नहीं करते। ये तहरीक है, कोई सबब है, कोई वजह है, इसलिए हम ये अज़ादारी इमाम हुसैन बर्पा कर रहे हैं। इस अज़ादारी इमाम हुसैन के हज़ारों फ़ायदे हैं, इस अज़ादारी इमाम हुसैन के हज़ारों करामात हैं, इस अज़ादारी इमाम हुसैन की हज़ारों फ़जीलतें हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि मासूम का फ़रमान है, जब कोई अज़ादार मजलिस हुसैन में जाने का ख़याल जहन में लेके आता है, परवरदिगार आलम फ़रिश्ते को उसकी हिफाजत के लिए भेज देता है। और जब कोई अज़ादार इमाम मज़लूम करबला मजलिस से उठ के घर की तरफ जाता है, तो एक फ़रिश्ता उसके लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है। ये मजलिस हुसैन का करम है, ये मजलिस हुसैन का शरफ़ है। अब थोड़ा मेरी तरह मुतवज्जे रहें, आवाज़ तो पहुंचा दूंगा मैं आप तक, और एक एक तक आवाज़ पहुंच जाएगी, लेकिन मेरी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएं। देखिए, अगर मजलिस इब्तिदा में बन गई तो मजलिस लास्ट तक बनी रहती है, और अगर मजलिस शुरू में ख़राब हो गई तो फिर आखिर तक मजलिस नहीं बन पाती। और मैंने उस दिन भी कहा था कि मजलिस ज़ाकिर नहीं पढ़ता बल्कि सामईन पढ़वाते हैं। मजलिस को मजलिस ज़ाकिर नहीं बनाता बल्कि सामईन बनाते हैं। अगर आप तवज्जो मेरी तरफ देंगे तो मैं इंशाअल्लाह मजलिस आप तक पहुंचा दूंगा। सुनिए, मजलिस इमाम हुसैन, अज़ादारी इमाम हुसैन है क्या? अरमान एक बार सही कर दो, जैसा भी करना है छोड़ दो। फिर अज़ादारी इमाम हुसैन, मजलिस इमाम हुसैन है क्या? सुनिए, आपने देखा होगा कि जब कोई बानियाने मजलिस अपने घर पर मजलिस करवाते हैं तो इश्तिहार निकालते हैं, और इश्तिहार में ऊपर लिखा होता है वक्त और टाइम, और नीचे लिखा होता है कि मजलिस में सोज़खानी ये करेंगे, पेशखानी ये करेंगे, और ख़िताबत फ़ला मौलाना करेंगे, और नीचे लिखा होता है कि नज़र मौला का एहतमाम किया गया, और उसके नीचे एक जुमला लिखा है कि मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। भाई यही जुमला होता है ना। सबसे पहले लिखा होता है कि किस मुनासिबत से ये मजलिस हो रही है, उसके नीचे लिखा होता है वक्त,
उसके नीचे लिखा होता है कि सोज खान कौन होगा, उसके नीचे लिखा होता है पेश खान कौन होगा, उसके नीचे लिखा होता है कि मौलाना कौन होगा, उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि नज़र मौला का एहतमाम किया गया, और उसके नीचे लिखा होता है कि कसीर तादाद में मोमिन शिरकत करें। एक ये दावत थी। लेकिन घर पे कोई और फंक्शन होता है तो बानियाने फंक्शन उसमें भी दावत देते हैं। जो दावत के कार्ड जाते हैं तो उसमें होता है कि आपकी दावत है विद फैमिली, आप आना अपने परिवार के साथ, यही तो होता है। ऊपर नाम लिखा होता है कि फला साहब, किसी का भी नाम लिखा हुआ होगा, और नीचे लिखा होता है विद फैमिली, आप अपने अहले खाना के साथ आना, अपने खानवादे के साथ आना, अपने बच्चों के साथ आना, बस ये लिखा होता है। लेकिन मजलिस का इश्तिहार जो जाता है, मजलिस की जो दावत जाती है, उसके नीचे लिखा होता है कि कसीर तादाद में शिरकत करें। जब वहाँ पर लोग जाते हैं, शादियों के फंक्शन में लोग जाते हैं या दूसरे फंक्शन में लोग जाते हैं, तो जो बानियान होते हैं तो वो नज़र रखते हैं कि तादाद ज़्यादा तो नहीं हो गई, वो तवज्जो रखेंगे। जो बानी होते हैं फंक्शन के, प्रोग्राम के, वो इस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि तादाद ज़्यादा तो नहीं हो गई, तादाद ज़्यादा तो नहीं हो गई। जितने लोगों की दावत की जाती है, अगर उनसे 10-20 ज़्यादा हो जाएं तो मेज़बान परेशान हो जाता है, प्रोग्राम करने वाला परेशान हो जाता है। हद यह है कि कितने मौक़ों पर ऐसा भी देखा गया कि बुलाए गए 30 मेहमान, पहुंच गए 50, तो जो बानी होता है वो नाराज़ हो जाता है कि हमने तो 30 बुलाए थे, तुम 50 क्यों आ गए, 20 इजाफे के साथ क्यों आ गए। लेकिन ये दूसरे फंक्शन में होता है। लेकिन मजलिस हुसैन होती है, यहाँ पर हम ये ख्याल करते हैं कि तबर्रुक 400 का आना है, लेकिन अज़ादार अगर 800 हो जाते हम नाराज़ नहीं होते बल्कि खुश हो जाते। वहाँ 10-20 में इजाफा होता है तो नाराज हो जाते हैं, यहाँ हजारों में इजाफा होता है तो तबर्रुक लाने वाला खुश हो जाता है, बल्कि अज़ा खाने की दहलीज पे खड़े होकर इंतजार करता है, भाई तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा। और फंक्शन में इंतजार करता है आदमी, काश ये ना आए, ये ना आए, ये ना आए। यहाँ बुलाया जाता है, वहाँ ये सोचा जाता है कि ये भी चला जाए, ये भी चला जाए। वहाँ ये ख्याल आता है कि खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन तबर्रुक इमाम हुसैन में एक भी बानी मुझे बताओ जिसने ये सोचा हो कि तबर्रुक कम ना पड़े। अब सुनिएगा, वहां पर अगर 10-20 में इजाफा हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, नाराज हो जाता है कि हमने बुलाए 50 थे, आप 10 में इजाफा करके क्यों लाए। हर बानिए प्रोग्राम नाराज हो जाता है कि हमने 50 बुलाए थे, आप 60 लेके क्यों आए। लेकिन मजलिस हुसैन में हमारा ख्याल था कि 100 आए, लेकिन मजलिस हुसैन में हजारों आ गए। लेकिन यहाँ कोई नाराज नहीं होता। एक बानी मजलिस का था, एक बानी शादी का था, वही बानी मजलिस का था, वही बानी शादी का था। शादी में 10 बढ़े तो वो बानी परेशान हो गया, मजलिस में हजारों बढ़े वो खुश हो गया। मैंने कहा मियाँ ये दोहरी दोहरी बातें कैसी, वहां 10 में इजाफा हुआ परेशान हो गए, यहाँ हजारों बड़े खुश हो गए। का मौलाना तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, रिश्तेदारी के तकाजे और होते हैं, आजादारी के तकाजे। रिश्तेदारी मौलाना, रिश्तेदारी के तकाजे और होते हैं, आज़ादारी के तकाजे और होते हैं। यहाँ तो अज़ा खाने का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर हुर बनना चाहता है तो चला आए। खुदा की कसम, जो अज़ा खाने से भगाने की बात करें उनका हुसैन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। यहाँ तो दरवाजे अज़ा खानों के खोल दिए जाते हैं, ना यहाँ आने पे पाबंदी है और ना यहाँ जाने पे पाबंदी है। हमने दरवाजे इसीलिए खोल दिए, आइए फर्श अज़ा इमाम हुसैन पर बनाए गए हैं ये अज़ा खाने, इसीलिए कि आइए मजलिस हुसैन में। ये मजलिसें इसीलिए तो की जा रही है, अज़ा खाने किस लिए बनाए हैं, ताकि आज़ादार आएँ। ये फर्श अज़ा क्यों बिछाया गया है, ताकि आज़ादार आएँ। और आज़ादार का रिश्तेदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रिश्ते का आज़ादारी में कोई दखल नहीं है। रिश्ता अपनी जगह है, आज़ादारी इमाम हुसैन अपनी जगह है। तो इससे ना मिलाइए, आज़ादारी को आज़ादारी रहने दीजिए, रिश्तेदारी को रिश्तेदारी रहने दीजिए।
मुझे ना देखो कि मैं कौन हूं, जिस वक्त मैं मिंबर पर आता हूं बस इतना ख्याल करो ये हुसैन का जिक्र करता है, सुन लेना है। मुझे लेके पार्टी ना बनाओ, लिल्लाह पार्टी ना बनाओ। सही, बहुत अच्छे। मैं यहाँ कोई अपने अजीज़ का तस्करा करने नहीं आता, अपने रिश्तेदार का जिक्र करने नहीं आता। मैं यहाँ से जितना जिक्र करता हूँ अहले बैत अतहार का जिक्र करता हूँ। और मौला का फरमान है अगर गैर भी है और वो अहले बैत का जिक्र कर रहा है तो सुनो, दुश्मन भी है, ये मत देखो कि जिक्र कौन कर रहा है, ये देखो कि जिक्र क्या कर रहा है। तो आज़ादारी इमाम हुसैन, सुनिए एक पैगाम देना है आज़ादारी इमाम हुसैन के सिलसिले से। अच्छा, हमने ये अज़ा खाना बना लिया, हमने ये अलम बना लिया, हमने ये ताज़िया बना लिया। अच्छा, बनाया क्यों? कि हमने ये अज़ा खाना बनाया हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन के लिए। ताज़िया बनाया हुसैन के लिए, अलम बनाया इमाम हुसैन के लिए, फ़र्श अज़ा बिछाया इमाम हुसैन के लिए। क्या कोई ऐसा है इस दुनिया मा सबक में जो ये कहे कि हमने अज़ा खाना हुसैन के लिए नहीं अपने लिए बनाया? या कोई है इस कायनात में जो ये कहे कि ये ताज़िया हमने हुसैन के लिए नहीं अपने लिए बनाया? और अगर ऐसा ख़याल अगर किसी के जहन में आ गया तो फिर वो अज़ादार नहीं हो सकता। अब सुनिए पैगाम, अज़ा खाना बनाया और हमारे चाचा बना रहे हैं, मौला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अज़ा खाना बना रहे हैं, ताज़िए भी बनाए गए, अज़ा खाने भी बनाए गए अज़ादारी इमाम हुसैन में। लेकिन जब हमने अज़ा खाने बनाए, ताज़िए बनाए, अलम बनाए, फ़र्श अज़ा बिछाया तो दूसरे लोगों ने कहा ये सब बिदअत है। अब मैं एक दलील देने लगा हूँ, सुनिए आज़ादारी इमाम हुसैन। अज़ा खाना बनाया, कहा ये बिदअत है। ताज़िया बनाया, कहा ये बिदअत है। अलम बनाया, कहा ये बिदअत है। क्यों भैया बिदअत है? बनाया तो हमने हुसैन के लिए है, हमने अज़ा खाना अपने लिए नहीं बनाया, हुसैन के लिए बनाया। ये ताज़िया हमने अपने लिए नहीं बनाया, हुसैन के लिए बनाया। तो बिदअत क्यों? कहा फिर भी बिदअत है। हमने कहा अगर ये अज़ा खाना बनाना बिदअत है, ताज़िया बनाना बिदअत है, अलम बनाना बिदअत है, तो ये फतवे हमें बाद में दीजिए, अल्लाह पे पहले दीजिए। भैया ये बिदअत के फतवे जो हम ये अज़ा खाना बना रहे हैं हुसैन के लिए, ताज़िया बना रहे हैं हुसैन के लिए, अलम बना रहे हैं हुसैन के लिए, और तुम ये कह रहे हो कि ये बिदअत है, तो ये फतवा हमें बाद में दीजिए, पहले खुदा को दीजिए। अब ये पढ़े लिखे लोग बोलेंगे ये फतवा हमें बाद में दीजिए, क्योंकि हमने ये जो कुछ भी बनाया अपने लिए नहीं, हुसैन के लिए, और जो कुछ भी बनाया उनकी मोहब्बत में बनाया। हमने ये जो कुछ भी बनाया उनकी मोहब्बत में बनाया। तो हमें फतवे देने से पहले उस खुदा को फतवा दो। हमने तो सिर्फ अज़ा खाना बनाया है, उसने ना जाने क्या क्या बनाया है। आप कहेंगे क्या क्या बनाया? तो हदीस कुदसी है, आवाज़ आई ए लमू या मलाइकती सुक्काना समावाती इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाए ल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। एक सलवात पढ़ें खुदा के लिए। हमने तो सिर्फ अज़ा खाना बनाया है, ताज़िया बनाया है, अलम बनाया है, फ़र्श अज़ा बनाया है, ज़री बनाई है। खुदा ने क्या क्या बनाया इनकी मोहब्बत में? उसने कहा है मेरे मलाइका जान लो, आसमान में रहने वालों, मैं अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये ज़मीन का फर्श नहीं बिछाया, मैंने ये आसमान का शामियाना नहीं लगाया, मैंने ये दरियाए जारी नहीं बनाए, मैंने ये ज़ूफ़िशा सूरज नहीं बनाया, मैंने ये चमक बिखेरता हुआ चांद नहीं बनाया, मैंने ये ज़ूफ़िशा सितारे नहीं बनाए, मैंने ये मुहकम पहाड़ नहीं बनाए, मैंने ये दरियाए जारी नहीं बनाए। अगर बनाए तो इनकी मोहब्बत में, इनकी मोहब्बत में जो इस वक्त चादर के नीचे हैं। आप मुझे बताएं चादर के नीचे थे कौन? कहा 5 तन, 5 तन चादर के नीचे थे। उन्हीं 5 तन की एक फर्द को हुसैन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जमीन, ये आसमान, ये दरिया, ये दरख्त, ये सितारे, ये सैयारे, ये पहाड़, ये समंदर सब अल्लाह ने बनाए हैं हुसैन की मोहब्बत में। मियां हमने
अज़ा खाना बनाया तो तुमने बिदअत कह दिया, उसने पूरी खुदाई बनाई तो सुभान अल्लाह, हमने अज़ा खाना बनाया तो बिदअत कह दिया। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद और सुनिए, ये सब बनाया गया है इनकी मोहब्बत में। अब यहाँ से पैगाम सुनिए, उसने आसमान का शामियाना लगाया है इनकी मोहब्बत में। यूं तो पूरी कायनात में सब कुछ अल्लाह ने बनाया, ये ज़मीन भी उसने बनाई है, आसमान भी उसने बनाया है, सितारे भी उसने बनाए, सैयारे भी उसने बनाए, सब कुछ उसने बनाया है। जन्नत भी उसने बनाई, कौसर भी उसने बनाया। नबी के सामने एक शख्स आके खड़ा हो गया, उसने कहा या नबी अल्लाह, सुभान है उसकी ज़ात कि जिसने पूरी कायनात बनाई। नबी ने कहा उसने इस पूरी कायनात में एक चीज़ नहीं बनाई। उसने कहा या नबी अल्लाह, सब कुछ तो उसने बनाया है, खालिक तो वो है, सब उसने बनाया है, वो कौन सी चीज़ है जो उसने नहीं बनाई? नबी अल्लाह ने फरमाया देखो, ज़मीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, दरिया उसने बनाए, दरख्त उसने बनाए, पहाड़ उसने बनाए, कौसर उसने बनाया, जन्नत उसने बनाई, सलसबील उसने बनाया, तूबा उसने बनाया, मगर जहन्नुम उसने नहीं बनाया। अरे जैसा मैं कोई बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने सब कुछ बनाया मगर जहन्नुम नहीं बनाया। उसने कहा ये कैसी बात, खालिक जन्नत भी है वो और खालिक जहन्नम भी है वो, मालिक जन्नत भी है वो और मालिक जहन्नम भी है वो, तो ये कैसी बात कि जन्नत उसने बनाया और जहन्नम उसने नहीं बनाया? नबी ने कहा तुझे नहीं पता, उसने मुझसे कहा था कि अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती मैं बनाता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जहन्नम उसने बनाया नहीं है, दुश्मन अहले बैत ने बनवाया। एक सलवात बने वर मोहम्मद वाल। अब सुनिए यहाँ से पैगाम सैयदू मजालिसिकुम। ये पूरी कायनात उसने बनाई है, ये जमीन का फर्श भी उसने बिछाया। आज मैं जिक्र करने वाला हूँ अली का, और अली सुनने वाले पस्तियों में नहीं रहते, बुलंदियों पे रहते हैं। आज जहन यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिस का मकसद क्या है, मजलिस की अजमत क्या है? नबी ने फरमाया अगर अपनी मजलिसों को जीनत देना चाहते हो तो अली का जिक्र करो। क्यों कहा? इसलिए कि इसका जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है और खुदा का जिक्र इबादत है। इसका मतलब यह है कि हम फर्श अज़ाए हुसैन पर बैठे हैं तो अपने आप को ये ना समझना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप इबादत कर रहे हैं। और खुदा की कसम अली के जिक्र की इबादत और है और अल्लाह के घर में जाके इबादत करना और है। वहाँ की इबादत और है, यहाँ की इबादत और है। खुदा ने ये नहीं कहा कि आप एक दिन की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी 1000 दिन की नमाज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा है कि अगर एक मरतबा आप अली कहेंगे तो ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। ये मेरी अपनी तरफ से तो नहीं है, ख़त्म कुरान का एक लफ्ज़ अली है कि आपकी ज़ुबान पर आएगा और ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। अब ये पैगाम सुनिए, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। कैसे दें? ये ज़मीन का फर्श उसने बिछाया, आसमान का शामियाना उसने लगाया। मुफज्जल इमाम रज़ा के एक चाहने वाले एक दिन इमाम रज़ा के चाहने वाले, इमाम के साथी, इमाम के सहाबी, नाम मुफज्जल, एक दिन सहरा में गए और आसमान को गौर से देखने लगे। देखते रहे, पहले ऊपर देखा, फिर साइडों से देखा, घूम घूम के देखा। मुफज्जल देखते रहे आसमान को और देखते देखते दौड़ते हुए इमाम की बारगाह में आए और आके कहते हैं मौला आज आसमान को इतने गौर से देखा कि एक सवाल मेरे जहन में घर कर गया। इमाम ने पूछा कैसा सवाल? कहा मौला मैंने जब सारे आसमान को देखा तो सवाल ये जहन में आया कि मौला मुझे ये बताएं कि आसमान को उसने बनाया तो बनाने के बाद ये जो आसमान फजाओं में रुका हुआ है इसके लिए सुतून भी बनाए हैं। ये जो आसमान है हमारे सरों के ऊपर, ये इतना तूलानी आसमान, इतना वसी आसमान, क्या इसे रोकने के लिए उसने सुतून भी बनाए हैं? उस अल्लाह ने इस आसमान को कायम कैसे किया? इमाम रज़ा का जुमला सुनिएगा। और इमाम रज़ा वो हैं जो सिर्फ इरादा करते हैं, तस्वीर भी हकीकत हो जाती है।
मुफस्सिल ने कहा मौला बताएं कि ये आसमान को उसने कायम कैसे किया, उसने फजाओं पे रोक कैसे दिया बगैर सतूनों के। मौला ने फरमाया मुफस्सिल अगर हम तुम्हें ये राज बताएं किसी से कहोगे तो नहीं। मुफस्सिल ने कहा मौला बताएं, राज राज रहेगा, किसी से ना कहेंगे। मौला ने कहा कि जब परवरदिगार आलम ने आसमान का शामियाना लगाया तो करीब था कि ये आसमान नीचे गिर पड़े। उसके लिए अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी जा और आसमान की वसत में 100 नाम लिख। जिब्रील ने कहा पालने वाले जा रहा हूं नाम लिखने के लिए, ये तो बता वो 100 नाम लिखूं किसके। अल्लाह ने कहा 1 मरतबा अल्लाह लिखना, 99 मरतबा अली लिख देना। मौला फरमाते हैं आसमान को रोकने के लिए अल्लाह ने 1 मरतबा अपना नाम लिखवाया और 99 मरतबा अली का नाम। ये मेरी अपनी बात नहीं, इमाम रिजा फरमाते मुफस्सिल से कि उसने 1 मरतबा अपना नाम और 99 मरतबा अली का नाम। लीजिए मुफस्सिल जमीन पे बैठ गए और जैसे ही जमीन पे बैठे मौला फिर सवाल आ गया। मौला ने कहा अब क्या सवाल है? कहा मौला इतना और बता दो ये जमीन का फर्श कैसे बिछाया। मौला बताएं ये जमीन का फर्श कैसे बिछाया। मौला ने फरमाया पहले पानी ही पानी था मुफस्सिल, उसके बाद अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें बुलंद की, उन मेखों पर जमीन का फर्श बिछा दिया। मुफस्सिल ने कहा मौला बताएं कि जमीन का फर्श बिछाया किसने। मौला ने कहा हुक्म हुआ जिब्रील को अल्लाह की तरफ से कि जाओ और जमीन की वसत में पहुंचना और वहां से जमीन को बिछाना शुरू करो। लीजिए जिब्रील कायनात की वसत में आ गए और जैसे बीचों बीच में कायनात किया है तो वहीं से इन्होंने जमीन को बिछाना शुरू किया। मुफस्सिल कहते हैं मौला कैसे बिछाई। मौला फरमाते हैं कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब, चारों समत से अल्लाह जमीन का फर्श बिछाता रहा। उसके बाद जब जमीन का फर्श बिछ गया तो मुफस्सिल कहते हैं मौला फिर जो पानी था नीचे वो हिला होगा, जमीन में जलजला आया होगा, जमीन बेकरार रही होगी। मौला ने कहा मुफस्सिल सही सवाल तेरे जहन में आया। जमीन में जलजला आया, जमीन बेकरार हो गई क्योंकि हवाओं ने पानी को खदेड़ना शुरू किया, इससे तूफान आया और वो पानी पहाड़ों से टकराया। पहाड़ों से टकराने के बाद जमीन में जलजला आ गया। तो मुफस्सिल ने कहा मौला अब ये बताएं कि जमीन को करार कैसे मिला, जमीन की बेकरारी कैसे गई। का हुक्म हुआ जिब्रील को जिब्रील जमीन के बीचों बीच में जाओ और वहां पर एक नाम लिख दो जिससे जमीन को करार मिल जाए। जिब्रील ने कहा पालने वाले कौन सा नाम लिखूं जिससे जमीन को करार मिल जाए। हुक्म हुआ कि जमीन के बीचों बीच में एक नाम लिखो। जिब्रील ने कहा पहले वाले किसका नाम? कहा लिखो या अली। जिब्रील ने जमीन के बीचों बीच या अली लिखा। जमीन की बेकरारी तो खत्म हो गई लेकिन जिब्रील की बेकरारी बढ़ गई। जमीन को करार मिल गया लेकिन जिब्रील बेकरार हो उठा। आवाज़ किरदगार आई जिब्रील तू बेकरार क्यों है? कहा पालने वाले मेरी बेकरारी ना पूछ, इसलिए कि जिसका तूने नाम लिखवाया है वो मेरा उस्ताद है। क्या कहें? जिसका तूने नाम लिखवाया है वो मेरा उस्ताद है। और पालने वाले मेरी दूरबीन निगाहें हैं, मैं यहाँ पर औलादे आदम को बसता हुआ देख रहा हूँ। मैंने ये नाम तो लिख दिया अपने उस्ताद का, अपने मौला का, अपने आका का, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहें ये भी देख रही हैं कि जब कसीर तादाद में औलादे आदम होगी तो हो सकता है कि किसी के पैर के नीचे ये अली का नाम आ जाए। इसलिए बेकरार हूँ कि अली का नाम किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, किसी के पैर के नीचे आ जाए। आवाज़ किरदगार आई जिब्रील परेशान ना हो, जहां तूने अली लिखा है वहां मैं काबा बना लूं। जिब्रील परेशान क्यों होता है? जहां तूने अली लिखा है वहां मैं काबा बना दूंगा। उसने अपने बैते मामूर की शबी काबा बना दिया। बैते मामूर की शबी है काबा, बैते मामूर की शबी है काबा। लीजिए जब हमने शबी है ताबूत बनाया तो दुनिया ने कहा बिदअत है, उसने अपने घर की शबी बनाई तो सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। ये काबा बैते मामूर की शबी है, उसने बना दिया कि जिब्रील तू परेशान ना हो, जिब्रील तू परेशान ना हो। सुनिए अली क्या है, कमाल है खुदा की कसम। आदम आए, आदम से आदम के बेटों ने सवाल किया अल्लाह है?
आदम ने कहा बेशक, सुनिएगा अली, आदम ने कहा बेशक, कहा देखा है, कहा देखा नहीं, कहा फिर दलील, कहा दिन का वक्त पे आना और चला जाना, ये दलील है। इब्राहीम आए, रैयत ने सवाल किया अल्लाह है, इब्राहीम ने कहा बेशक है, कहा दलील, का सूरज का वक्त से निकलना और वक्त पे गुरूब हो जाना, ये दलील है उसके होने की। मूसा आए, रैयत ने फिर सवाल कर लिया अल्लाह है, मूसा ने कहा बेशक है, कहा दलील, कहा ये दरियाए जारी, इससे पता लगता है वो है। ईसा आए, रैयत ने सवाल किया अल्लाह है, ईसा ने कहा बेशक है, कहा दलील, कहा ये निज़ाम कायनात का चलना। रैयत आती रही, सवाल होते रहे और दलील अंबिया देते रहे। रईयत ने सवाल किए, अंबिया ने दलील दी। दलीलों में किसी ने सितारे, किसी ने सैयारे, किसी ने दरख्त, किसी ने दरिया, किसी ने सूरज, किसी ने चांद। जिस जिस मासूम से सवाल हुआ कि अल्लाह है, मासूमों ने कहा बेशक है, कहा देखा है, कहा किसी ने नहीं देखा, कहा दलील, कहा निज़ाम कायनात, किसी ने सितारा बताया, किसी ने सैयारा बताया, किसी ने चांद बताया, किसी ने सूरज बताया। एक शख्स अली के पास गया, उसने कहा या अली अल्लाह है, मौला ने कहा बेशक है, उसने कहा मौला दलील, कहा दलील मैं अली खुद हूं। मौला ने कहा दलील, कहा दलील मैं अली, दलील मैं अली खुद हूं। और यही सबब है कि मस्जिद कूफा में अली नमाज पढ़ रहे थे, अली की जुबान पर अल्लाहू 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 के विर्द था कि एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा या अली, जिसकी तुम इबादत करते हो क्या तुमने उसे कभी देखा है? अली, जिसकी तुम इबादत करते हो क्या तुमने उसे कभी देखा है? मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मैं उस खुदा की इबादत क्यों करूं जिसे मैंने कभी देखा ही ना हो। उसने कहा या अली, आपने देखा है? कहा मैं उसकी इबादत क्यों करूं? ये मालम यमानी आलिम दीन है जिन्होंने ये वाक़या नकल किया है। उसने कहा या अली, जिसकी तुम इबादत करते हो, इतनी कसीर तादाद में इबादत करते हो, क्या कभी उसे तुमने देखा है? अली ने कहा मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ही ना हो। उसने जिद की या अली, तुमने देखा है? अली ने कहा हाँ मैंने देखा है। उसने कहा या अली, जब देखा है तो बताओ वो है कैसा? खुदा की कसम यही जुमला लिखा है उन्होंने अपनी किताब में, या अली जब तुमने उसे देखा है तो फिर ये भी बताओ वो लगता कैसे है? खुदा की कसम अली ने वजहुल्लाह वाला चेहरा उसके सामने किया और कहते हैं ऐसा लगता है। मैं खुदा ये किताब की मैं रिवायत कि ऐसा लगता है अली, ऐसा लगता है। अब सुनिएगा, बड़ी करीब से गुजरूंगा मैं, समझना तुम्हारा काम। साहिबान अक्ल बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, सुनिए अली की अजमत, अली की फजीलत, अली का मर्तबा, अली का वक़ार मैं सुनाता हूँ। हदीस गमामा, नहजुल बलागा, नहजुल इसरार, फ़ज़ाइल अहले बैत, फ़ज़ाइल मुर्तज़विया, इतनी किताबों में हवाले मिलेंगे तुम्हें। हदीस गमामा क्या है? कहा यह बादलों वाली हदीस क्या है? मासूम से पूछा गया ये बादलों वाली हदीस क्या है? सलमान ने कहा मैं बताता हूँ तुम्हें ये बादलों वाली हदीस क्या है। एक दिन मदीने की गलियों में अली टहल रहे थे कि मैं पीछे पीछे अली के पास पहुंचा। अली ने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने के बाद अली सलमान से कहते सलमान क्या तेरा दिल नहीं भरा मदीने में रहते रहते? सलमान ने कहा मौला दिल तो भर गया, लेकिन कहाँ जाऊं, कहाँ की सैर करूं? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान चल आज तुझे मैं दुनिया की सैर करा दूं। सलमान ने कहा मौला क्या अच्छा होगा कि आपके साथ और इस कायनात की सैर करने का मौका मिलेगा। अली ने कहा क्योंकि मेरे हसनैन ने जिद की हुई है, मेरे बच्चों की जिद है, वो ये कह रहे हैं कि हम आलमीन की सैर करेंगे, तो मेरे बच्चे मेरे साथ जाने वाले हैं। सलमान तू भी तो 10वें दर्जे पर फाइज है, तू भी तो राज को राज बना के रख सकता है, मेरा दिल है कि तू भी मेरे साथ चल। लीजिए सलमान से जैसे ही कहा आलमीन की सैर, सलमान खुश हो गया। सलमान ने कहा मौला जाना कैसे है? पहले मौला ने कहा जल्दी दौड़ता हुआ जा, मेरे बच्चों को बुला के लेके आ। लीजिए सलमान पहुंचे दर फिजा पर, दर ज़हरा पर, आवाज दी। जनाब फिजा ने बच्चों को कपड़े उपड़े पहना के, सवार के, सजा के सलमान के साथ भेज दिया। सलमान जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके मौलाए कायनात के पास आए। अब सलमान पीछे पीछे, कब कायनात की सैर होगी, कब दुनिया की सैर होगी, कब आलमीन की सैर होगी। हम ना ज़रा सा सफ़र कर लेते हैं फ़ज़ाओं का, दूसरे शहरों में चले जाते तो बड़ा नाज, बड़ा फ़ख्र होता है कि हम इस शहर गए, हम वहाँ गए, हम उस देश गए। देखिए सलमान का
سلمان کی فضیلت، سلمان سے مولا کہہ رہا ہے آج تجھے عالمین کی سیر کرائی جائے گی۔ سلمان اندر اندر خوش ہے، عالمین کی سیر کروں گا، آج عالمین کی سیر کروں گا، یہ مدینے کے بنیے بکالے یہی رہیں گے، میں عالمین کی سیر کروں گا، میں عالمین کی سیر کروں گا۔ یہ کہہ کے حسنین کے ساتھ علی کے پیچھے پیچھے علی مسجد میں داخل ہوئے، سلمان بھی مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ علی نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے ہی علی کی انگلی کا اٹھنا تھا کہ بادل کے 2 ٹکڑے مسجد میں اتر گئے۔ جیسے ہی سلمان نے علی نے انگلی اٹھائی، بادل کے 2 ٹکڑے مسجد کے صحن میں اترے۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ ایک بادل کے ٹکڑے میں مالک بیٹھ گئے اور ایک ٹکڑے میں ہم نوکر بیٹھ گئے۔ اکیلے سلمان نہیں تھے، سلمان کے ساتھ ابو ذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، میسم بھی تھے۔ ایک بادل کے ٹکڑے میں یہ بیٹھ گئے اور ایک بادل کے ٹکڑے میں مالک بیٹھ گئے۔ اب سنیے گا، میں نے اتنی کتابوں کے حوالے دیے، نہج البلاغہ، نہج الاسرار، فضائل مرتضویہ، ان کتابوں میں یہ ذکر حدیث غمامہ موجود ہے، بادلوں والی حدیث۔ اشارہ کیا 2 بادل آئے، ایک میں مالک بیٹھ گئے سلمان کہتے ہیں اور ایک میں ہم نوکر بیٹھ گئے۔ بس علی نے زمین کی طرف اشارہ کیا، بادلوں نے اڑنا شروع کر دیا۔ سلمان کہتے ہیں بادل اتنی رفتار کے ساتھ اڑ رہے تھے کہ ہماری زلفیں لہرا رہی تھی، اور کہہ رہے ہیں جب تھوڑی دیر ہم نے سیر کی تھی تو ہم نے پھر مولا سے خوش ہو کے پوچھا مولا ہم نے کتنی سیر کی؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں بس یوں ہی سلمان 18,000 عالمین کی سیر کی۔ سلمان نے کہا مولا کتنی سیر کی؟ مولا کہتے ہیں بس یوں ہی 18,000 عالمین کی سیر کی۔ جیسی 18,000 کا نام آیا سلمان پریشان، 18,000 عالمین، 18,000 عالمین، 18,000 عالمین۔ حیرت زدہ تھا سلمان۔ مولا نے کہا سلمان تو 10ویں درجے پر فائز ہے، لیکن آج میں تیری حیرت اتنی بڑھا دوں گا تو خاموش ہو جائے گا، تو چپ ہو جائے گا، تو بولے گا نہیں، تو سوئے گا نہیں۔ سلمان نے کہا مولا اب کیا کرنے والے ہو؟ 18,000 عالمین کی سیر کر چکا ہوں۔ مولا نے کہا سلمان تیری حیرت اور بڑھاتا ہوں میں، اور یہ کہہ کے علی نے بادلوں کو حکم دیا، بادل ایک پہاڑی پہ اتر گئے، اور جیسے ہی بادل اس پہاڑی پہ اترے مولا نے کہا سلمان میرے پیچھے آ۔ سلمان مولا کے پیچھے پیچھے، مولا آگے آگے، سلمان پیچھے پیچھے۔ سلمان پریشان، لے کے کہاں گئے؟ آ رہے ہیں 18,000 عالمین کی سیر کر چکے ہیں ہم، اللہ جانے کون سی دنیا میں ہے سلمان، علی کے ساتھ نہ جانے کون سی دنیا میں ہے سلمان۔ جیسے ہی پہاڑی پہ وہ بادل اترے اور سلمان علی کے پیچھے پیچھے، تو سلمان نے دیکھا کہ ایک مردہ اسی پہاڑی پہ پڑا ہوا ہے۔ سلمان نے کہا مولا بتائیں یہ کون ہے؟ سلمان نے کہا مولا بتائیں یہ کون ہے؟ مولا نے کہا ہم بتائیں یا اس سے خود پوچھو گے؟ سلمان نے کہا مولا آپ بتا دیں یہی کافی ہے، لیکن لطف تو تب آئے گا جب یہ خود بتائے کہ یہ کون ہے۔ اچھا، مولا نے اس مردے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی، اور انگوٹھی ڈالنے کے بعد کہا بیدار ہو جاؤ۔ جیسے یہ جملہ کہا وہ زندہ ہو گئے۔ اب سلمان نے سوال کیا بھیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سلیمان بن داؤد ہیں۔ کیا؟ ہم سلیمان بن داؤد ہیں۔ مردہ پڑے ہوئے تھے۔ سلمان نے کہا کون؟ سلیمان نے کہا سلیمان بن داؤد۔ آپ نے ایک بات محسوس نہیں کی، علی نے ہاتھ پکڑا سلیمان زندہ ہو گئے، علی نے ہاتھ پکڑا اور سلیمان نبی زندہ ہو گئے، علی نے ہاتھ پکڑا اور سلیمان نبی زندہ ہو گئے۔ علی میں اور نبیوں میں یہی فرق ہے، نبی مردے زندہ کرتے ہیں، علی نبی زندہ کرتا ہے۔ لیجئے اب یہ پوری سیر و سعادت ہونے کے بعد انہی بادلوں پہ سوار ہو کے سلمان علی کے ساتھ مدینے آ گیا۔ علی نے خدا حافظ کہا، حسنین نے سلمان کو خدا حافظ کہا، یہ اپنے گھر پہ آ گئے، سلمان اپنے گھر چلا گیا۔ 3 دن تک سلمان نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ سویا، نہ کسی سے کچھ بولا، خاموش ہو گیا سلمان۔ 3 دن تک نہ علی سے ملاقات کی، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا،
نہ کسی سے گفتگو کی. 3 دن کے بعد جب علی سے ملاقات ہوئی سلمان کی تو علی نے کہا سلمان کیا ہوا, خاموش خاموش کیوں ہو, چپ چپ کیوں ہو؟ 3 دن ہو گئے ملاقات کے لیے نہیں آئے, ملنے کے لیے نہیں آئے, ہر دن سلام کرنے آتے ہو, ہر دن نوکری کرنے آتے ہو, ہر دن غلامی کرنے آتے ہو, سلمان 3 دن سے کیوں نہیں آیا؟ سلمان کہتا ہے مولا تیری ولایت کی قسم 3 دن ہو گئے نہ میں نے کھانا کھایا, نہ میں نے پانی پیا, نہ کسی سے بولا, مولا میری حیرت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. پریشان سلمان, کیا ہوا؟ کسی سے بولتا نہیں, خاموش چپ, کیونکہ 18,000 عالمین کی سیر کر کے آیا. اللہ جانے علی نے کیا کیا سلمان کو دکھا دیا کہ سلمان خاموش ہو گیا. جب خاموش رہا سلمان تو بہت دیر کے بعد سلمان کہتا ہے یا علی اگر آپ سے کچھ سوال کروں تو جواب دو گے؟ اب یہ سوال سننا سلمان کا, 10ویں درجے پر فائز ہے سلمان. کہتا ہے یا علی, حیرت زدہ ہے سلمان, کہتا ہے یا علی اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ حدیث غمامہ یاد رکھنا ذہن میں. یا علی آپ سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ علی نے کہا بے شک دوں گا. کہا مولا تجھے تیری ولایت کی قسم مسمک حق, تو سچ بتا کہ تیرا اصل نام کیا ہے. کیا کہا سلمان نے؟ مسمک حق, مولا تجھے تیری ولایت کی قسم سچ بتا تیرا اصلی نام کیا ہے. اس کے بعد سلمان کہتا ہے من انتا, مولا مجھے تو یہ بتا کہ تو ہے کون. تم نے بڑی آسانی سے سن لیا. پہلے کہا سلمان نے رات دن ساتھ رہتا ہے سلمان, اس کے بعد کہہ رہا ہے تجھے تیری ولایت کی قسم بتا تیرا اصلی نام کیا ہے. اس کے بعد کہتا ہے مولا بتا تو ہے کون. علی نے کہا سلمان اسے راز رہنے دے, سلمان اسے راز رہنے دے. کہا مولا نام بتائیں. مولا نے کہا سلمان بس اتنا سمجھ لے میں وہ ہوں جس پہ نام کا اطلاق نہیں ہوتا. اس نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا. مولا نے کہا کیونکہ اسم ہے مخلوق, ہم ہے خالق, اس لیے اسموں کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا. اسم بعد میں ہے اور ہم, نام بعد میں ہیں اور ہم پہلے ہیں. اور ان کی دلیل یہی ہے کہ اسی وجہ سے یہ امام زمانہ ہے, کیونکہ زمانہ بعد میں ہے, امام یہ پہلے ہیں. مسموں کا حق, مولا بتا کہ تیرا نام کیا ہے. اس کے بعد سلمان کہتا ہے مولا بتاؤ آپ ہیں کون. مولا نے کہا سلمان بس اتنا جان لے کہ اسموں کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا. سلمان نے کہا مولا تجھے تیری عزت کی قسم اتنا بتا دے تو ہے کب سے. سلمان کہتا ہے مولا مجھے اتنا اور بتاؤ کہ آپ ہیں کب سے. مولا نے کہا سلمان یہ بھی نہ پوچھ میں کب سے ہوں, یہ سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں تھا میں تھا. سلمان کچھ بھی نہیں تھا اور میں تھا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں ہوں گا. سلمان نے کہا مولا کچھ بھی نہیں تھا تو تھا, کچھ بھی نہیں ہوگا تو تو ہوگا. مولا پھر یہ بتا جب کچھ بھی نہیں تھا تو تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہوگا, تو پھر یہ بتا دے تو رہتا کہاں تھا. مولا جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا بتا دے تو رہتا کہاں تھا, رہتا کہاں تھا, رہتا کہاں تھا. مولا مسکرا کے فرماتے سلمان یہ تجھے راز بتا رہا ہوں لیکن خبردار کسی سے کہنا مت میں رہتا کہاں تھا. سلمان نے کہا مولا تو تھا, ایک وہ تھا جہاں وہ رہتا تھا وہاں تو رہتا تھا, لیکن مولا یہ بتا دے کہ تو رہتا کہاں تھا, کیونکہ تو بھی مکان سے بری وہ بھی مکان سے بری. جب کچھ تھا ہی نہیں تو رہتا کہاں تھا, وہ تھا ایک تو تھا, تو پھر تم دونوں رہتے کہاں تھے. مولا مسکرا کے فرماتے سلمان بس اتنا سمجھ لے وہ مجھ میں رہتا تھا میں اس میں
मौला जब कुछ भी नहीं था, वो था और तू था, तो तुम दोनों रहते कहाँ थे? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, सलमान वो मुझ में रहता था, मैं उसमें रहता था। सलमान परेशान, कैसे मौला मुमकिन है? का 18,000 साल तक मैं उसकी आंखों से उसे देखता रहा। 18,000 साल तक मौला फरमाते सलमान मैं उसकी आंखों से उसे देखता रहा और 18,000 साल तक वो अपनी आंखों से मुझे देखता रहा। का 18,000 साल वो मुझे देखता रहा, मैं उसे देखता रहा। 18,000 साल के बाद वो बोला। मौला फरमाते 18,000 साल के बाद वो बोला। सलमान ने कहा मौला क्या बोला? क्या उसने बोला मन अंता, मैं कौन हूं? सलमान कहते 18,000 साल तक, मौला फरमाते सलमान 18,000 साल तक मैं उसे देखता रहा, वो मुझे देखता रहा। 18 साल के बाद वो बोला। सलमान ने कहा मौला क्या बोला? क्या उसने बोला मन अना, मुझे बता कि मैं कौन हूं, वा अंता, और ये बता कि तू कौन है। जैसे ही वो बोला उसके बाद मैं बोला कि तू कौन है, मैं कौन हूं ये तू जानता है। मौला फरमाते सलमान मैंने उससे कहा कि मैं कौन हूं ये तू जानता है और तू कौन है ये मैं जानता हूं। 18,000 साल तक मैं उसकी आंखों से उसे देखता रहा। 18,000 साल तक वो अपनी आंखों से मुझे देखता रहा। 18,000 साल के बाद वो बोला। क्या बोला? कि मन आना, मैं कौन हूं, व अंतुम, और तू कौन है। तो मैंने कहा कि मैं जो हूं वो तू जानता है और जो तू है वो मैं जानता हूं। उसने कहा मैं जानता हूं तू अली है। मैंने कहा मैं जानता हूं तू अल्लाह है। मैं जानता हूं कि तू अली है। उसने कहा तू अल्लाह है। अली ने कहा तू अल्लाह है। अल्लाह ने कहा तू अली है। यही सबब है कि इमाम खुमैनी ने कहा कि परवरदिगार के सारे नाम जाती हैं मगर अल्लाह नाम जाती नहीं, अली का दिया हुआ है। अल्लाह के जितने भी नाम हैं सबके सब जाती है, लेकिन ये नाम जो अल्लाह है ये अली का दिया हुआ है, ये अली का दिया हुआ है, ये अली का दिया हुआ है, ये अली का दिया हुआ है। अली के कितने नाम हैं आप अल्लाह से मंसूब कर सकते हैं। अल्लाह के कितने नाम हैं जो आप अली से मंसूब कर सकते हैं, मगर ये लफ्ज़ अल्लाह आप कभी भी अली से मंसूब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दलील क्या है? उसने कहा कि मैं जानता हूं तू अली है। अली ने कहा तू अल्लाह है। और खुमैनी साहब ने क्या कहा कि ये अल्लाह नाम उसका अली ने रखा है जो किसी का मोहताज नहीं था। वो अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन नाम में अली का मोहताज नजर आया। अली ने नाम सबसे पहले अल्लाह किसने कहा? अली ने कहा। तो ये अल्लाह नाम दिया है उसे किसने? अली ने। उसे ये अल्लाह नाम दिया है किसने? अली ने। उसे ये अल्लाह नाम दिया है किसने? अली ने। यही सबब है कि जब नुसैरी ने अली को अल्लाह कहा, अली ने तलवार निकाली उस पर चलाई। क्या वजह थी? क्या वजह ये थी कि अली ने तलवार चला के उसे कत्ल करके कहा नादान तुझे पता नहीं जो चीज हम किसी को दे देते हैं फिर वापस नहीं। जैसे नुसैरी ने अल्लाह कहा, ये तलाक है। सबसे पहले अली ने उसे अल्लाह कहा। और जनाब जिब्रील के लिए कहा जाता है ना कि जिब्रील के उस्ताद का नाम है अली। अब ये और सुन लीजिए और बात को तमाम करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। कहते हैं ना जिब्रील के उस्ताद कौन है? अली। आपने आज तक सुना है कि जिब्रील के उस्ताद हैं अली, तो हमें ये भी तो बताएं अली ने पढ़ाया क्या है जिब्रील को? क्या नूर पढ़ता भी है? नूर तो पढ़ा लिखा होता है। फिर ये उस्ताद कैसे हुए? मासूम फरमाते हैं कि जब परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को खल्क किया
اور خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے صدا بلند کی جبریل کے آگے کہ بتاؤ ہم کون. اب جبریل کو ابھی خلق کیا تو انہیں کیا پتا، نہ انہیں اپنے بارے میں پتا تھا نہ اس کے بارے میں پتا تھا. خدا نے پوچھا بتاؤ ہم کون اور تم کون. اب جبریل پریشان، مولا نے آ کے مدد کی کہ جبریل پریشان کیوں ہوتا ہے، کہہ دے انا جبریل انتا رب ذل جلیل. یہ جملہ مولا کائنات نے جبریل کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو کہہ کہ میں جبریل ہوں اور تو رب جلیل ہے. جبھی سے جناب جبریل کے مولا کائنات استاد ہو گئے. تو کہاں رہتے تھے مولا؟ وہاں رہتے تھے. سلمان اس کے بعد اور پریشان. تاریخ بتاتی ہے پھر سلمان کو سمجھاتے تھے مولا، لیکن سلمان یاد رکھنا وہ ہے، میں ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر علی عبادت نہ کرتے تو کوئی خدا کو سجدہ نہ کرتا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد علی اس کی عبادت نہ کرتے تو پھر کوئی اسے سجدہ نہ کرتا. علی نے سجدے کر کے بتایا کہ وہ ہے، ورنہ کائنات تو علی کی طرف آ رہی تھی. نصیری ابراہیم پریشان ہو گئے تھے، انبیاء علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے. علی کے بارے میں سوال کیے جا رہے تھے. ہم سے کہا جاتا ہے علی کی حد بڑھا دیتے ہو. کائنات میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا علی کی حد کیا ہے. اتنی عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے میرا مولا، لیکن اسی کے بچے ہیں کربلا میں کتنے مصیبت زدہ.